I request Atiq sir to accompany Huda Saab. I request Atika ma'am is from Children Fine Art Gallery. Thank you so much. A round of applause, students. Thank you so much. Of the guys, it's a great pleasure and a dream come true for me. Today, the most eminent personalities from our society are in between us. Janab Sayyid Anwarul Huda Saab and Subbu Parmeshwaran sir and Atika ma'am, who has blessed this occasion by giving their precious time, and they are in between us to encourage and to support what actually future generations need. So children and facilitator teachers, the idea to gather or to conduct this event is the old city schools, especially the schools which are unable to explore their abilities and their potentials which is within themselves. So along before we got a chance to meet with the Children's Art Gallery, but it was a long journey, like almost 10 years, which has came through today. And the basic idea of conducting this art contest is we the member of MPSF body believe that children has to be as self-learners, and they should get the skill-based education, not rote methodology. The children should observe their surroundings and they should try to realize their inner potentials, in which departments their interest is more, so that they can excel in the future. So here we found that in CCE module there are मजलिस प्राइवेट स्कूल फाउंडेशन के कारकुन और पूरी टीम जो यहाँ मौजूद हैं, आर्ट गैलरी अतिका जो चिल्ड्रंस आर्ट गैलरी रन करती हैं, उनसे काफ़ी पुराने मुराजिम हैं मेरे, करीब 10-15 साल, 20 इयर्स 20 साल से जान पहचान है। और मैंने भी एक कोर्स किया वहाँ पर आर्ट एप्रिसिएशन का उनकी गैलरी में। देन हमारे जो टीम जो लर्निंग लाइफ स्किल फाउंडेशन की जो टीम है, वो हमारे टीचर्स जो आए हैं स्कूल से, और सबसे बड़ी चीज़ हमारे बच्चे, प्यारे बच्चे जो आज निकल के आए हैं और यहाँ ग्राउंड में मौजूद हैं, मीडिया। मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों को एक तो मौका ये मिला कि आप लोग अपने जो, जाहिर सी बात है ओल्ड सिटी में कन्फाइंड स्पेसेस हैं, स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर इतने नहीं है जितना होना चाहिए, प्लेग्राउंड्स या फिर ऑडिटोरियम, तो आप लोग को वहाँ से निकाल के यहाँ पर ग्राउंड में आज लेके आए हैं। नेचर के बीच में, घास में, पेड़ पौधों के बीच में बैठे हुए हैं आप लोग। हालांकि ज़रा सा धूप है, मैंने कहा है कि आप लोग को वो अम्ब्रेला दें, जो पिकनिक अम्ब्रेला होती है, जहाँ जहाँ आप लोग बैठेंगे, तो कम से कम अभी 2-3 घंटे और लगेंगे आप लोग को, 12-1-2 बजे तक शायद चलेगा ये प्रोग्राम। तो बहुत खुशी है कि आप लोग सब इकट्ठा हुए हैं। दिस इज आई टोल्ड द सेकेंड राउंड। फर्स्ट राउंड आपका हो चुका है। चारों तरफ भी देखें, रंग बिरंगे देखिए, आपकी स्कूल यूनिफॉर्म्स अलग हैं, दुपट्टे अलग हैं, हिजाब अलग अलग कलर के हैं। तो यहीं आपको इतने कलर्स नजर आ रहे हैं। देखिए आपके सामने, अगर आप सिर्फ देखें चारों तरफ, आपके इर्द गिर्द भी इतने कलर नजर आ रहे हैं। MPSF society, and then the respected school leaders, staff, and your teachers and children. So it's very pleasurable moment for me,
seeing you very happy in the ground, and I really appreciate the teaching staff. There is no stick in their hands. No, normally such gatherings में stick लेके okay, stand in a line, go in a line. No, most of the discipline comes here. But here there is no stick, and all children were disciplined. Really, I appreciate. It's really a good. So really, you got a freedom today, and you are very free to express your talent. Okay. Now students listen carefully. Atika ma'am is going to give you few instructions. किस तरीके से आपकी पेंटिंग शीट को इस्तेमाल करना है, आप पेंटिंग कैसे शुरू करोगे, ईच एंड एवरी। अभी हम यहाँ पर पहुँचे हैं हाई स्कूल के स्टूडेंट्स के पास। ये भी जो है माशाल्लाह जो काफ़ी अच्छी ड्राइंग कर रहे हैं। आइए उनसे भी कुछ मालूमात करने की कोशिश करते हैं। बेटे आप ड्राइंग शुरू कर दिए, आप कैसा दिख रहा है आपको ये ड्राइंग? आप कामयाब होंगे इसके अंदर? जी इंशाल्लाह ज़रूर है, अब कोशिश तो जारी है जी, कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? आमिना फिरदौस। कौन से स्कूल से? ब्लूबर्ड्स ग्रामर हाई स्कूल। क्या लगता है आपके दोस्तों को मैसेज देना चाहेंगे? जी हाँ जी, अब नॉलेज है तो अब करना ही पड़ेगा हमें। वेरी गुड। हाँ, और अगर अपने अंदर जो जस्तजू है नॉलेज की पेंटिंग के, उसमें हम ये करेंगे तो कामयाब होंगे इंशाल्लाह। बराबर। जी चलिए, आमिना फिरदौस का कहना है कि जो मेहनत करते हैं वही कामयाबी पाते हैं। तो नाज़रीन, ये काफ़ी अच्छी दिलचस्प बात कही है। छोटी सी मासूम सी लड़की ने जो है कामयाब अपने कदम चूमने के लिए काफ़ी कोशिश कर रही है। और भी ऐसे स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है मसरूफ़ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक लड़की है। बेटा आपका नाम? सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, नाम बताइए बेटा आपका। उम्मीमा। उम्मीमा। कौन से स्कूल से आप? मरियम स्कूल। मरियम स्कूल। क्या उतार रहे हैं यहाँ पे भी? जी दैट ड्राइंग। अच्छा, देख कर उतारना है आपको। तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे और भी स्टूडेंट्स को, आपके फ्रेंड्स को? That they want to be participate in them, because when children have to participate in activities, their mind will be sharp if they participate in activities. Thank you. Okay, thank यहाँ पर एक इवेंट रखा गया है जो है मंजलिस प्राइवेट स्कूल फेडरेशन की तरफ से। एक आर्ट गैलरी का जो है कंपटीशन रखा गया है। काफ़ी स्कूल्स के यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम माजिद साहब का जो है इस्तकबाल करते हैं और उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं ईएम की जानिब से कि जो है बच्चों के लिए इतना कुछ सोचे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। पुराने शहर में ऐसे आर्ट कंपटीशन रखना चाहिए, बच्चों को इंकरेज करना चाहिए। तो माजिद साहब आपका जो है ईएम में आपका इस्तकबाल करते हैं। शफ़ी साहब आपका जो है इस्तकबाल करते हैं ईएम न्यूज़ में। तो सर ये बताइए आपको कैसे सोचा कि जो है ये अवेयरनेस लाने के लिए बच्चों के पास? अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शफ़ी है। मैं मोनार्क हाई स्कूल का डायरेक्टर हूँ और इसके साथ ही साथ मैं मजलिस प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। आज जो है यहाँ पर ABRR ग्राउंड में बच्चों को MPSF आर्ट कॉन्टेस्ट के ज़रिए जो है यहाँ पर मोबिलाइज़ किया गया है। इसके पीछे इंटेंशन ये रहा है, हमारे ओल्ड सिटी के स्कूल्स में बच्चों को जो है रिसोर्सेज की कमी है, जैसे प्लेग्राउंड्स नहीं हैं और क्लासरूम्स बोलिए, स्कूल्स बोलिए, और हमारे बच्चे जो स्कूल्स में तालीम हासिल कर रहे हैं वो ज़्यादातर रोट मेथडोलॉजी हो रही है। तो जहाँ पर क्या है, बच्चों को जो है इंस्ट्रक्शनल टीचिंग के बाद जो है बच्चे जो अपने लर्निंग एबिलिटीज़ ज़ाहिर करते हैं वो स्किल बेस्ड नहीं है। तो हमारे यहाँ पर CCE मॉड्यूल जो एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से जो है एक CC कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूशन के तहत बच्चों को को करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर डिफरेंट 4 पैरामीटर्स में उनको असेस करना है, यानी उनको टेस्ट करना है, जिसके अंदर सब में पहले जो है सोशल इमोशनल स्कूल स्किल्स होते हैं बच्चों के, यानी जज्बाती तौर पर कुछ बच्चे जो है गुस्से वाले होते हैं, कुछ बच्चे ज़िद्दी होते हैं और कुछ बच्चे क्या है मूडी होते हैं। तो उनके इस इमोशंस को जो है सही ट्रैक पे लाने के लिए और उनको जो है एक बैलेंस शख्सियत की तौर पर जो है उभारने के लिए
ये सोशल इमोशनल स्किल्स होता है। इसी तरीके से स्पोर्ट्स के ज़रिए जो है बच्चों को स्पोर्टिव स्पिरिट डेवलप करके जो है उनको फिज़िकल फिटनेस और आगे चल के वो जो है एक नेशनल लेवल के खिलाड़ी बने, रैंचेस खेल कर जो है नेशनल लेवल और नेशन को कंट्रीब्यूशन दें, ये मकसद रहता है। इसी के साथ ही साथ आर्ट एंड कल्चर एक दूसरा पैरामीटर है जहाँ पर बच्चों को मार्क्स देना रहता है। अक्सर ऐसे देखा जाता है कि हमारे स्कूल्स के अंदर वो बच्चों को जो है बगैर और उनके स्किल्स टेस्ट करे के मार्क्स अलाउड होते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों हम बच्चों को इसी अलाउड करना मार्क्स, इसको जो है थोड़ा सा एसेस करेंगे। इसके तहत जो है हम दी चिल्ड्रंस फाइन आर्ट गैलरी बंजारा हिल्स के जो है हजरात मेम्बरान जो है हमारे साथ कोलैबोरेट करे हैं इस दफ़े, और जिसका जो है हम बेहद शुक्रगुजार हैं। शफी सर, ये बात आपको रुकता हुआ चलूँ कि कितने स्कूल्स के बच्चे जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कितने स्कूल्स वाले पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस कंपटीशन में? जी, यहाँ पर हमारा मकसद जो है ओल्ड सिटी के तमाम स्कूल्स को जो है कनेक्ट करने का हमारा इरादा है। आर्ट इन ए क्लास बोलकर ये कॉन्सेप्ट के ऊपर जो है हम इंशाल्लाह हर स्कूल्स को जो है पहुँचने की कोशिश करेंगे। ये जो है फर्स्ट इनिशिएटिव रहा हमारा, जो समय पहला इनिशिएटिव है आर्ट कॉन्टेस्ट को लेकर। ये ओल्ड सिटी के अंदर मैं समझूंगा कि इस तरीके का पहली दफ़े हो रहा है इस ग्राउंड के अंदर। तो मौजूदा इस इनिशिएटिव में 20 स्कूल्स पार्टिसिपेट करे हैं और 1700 स्टूडेंट्स जो है एनरोल हुए हैं टोटली, जिसके अंदर बच्चों की जो है आर्टिस्टिक स्किल है उसमें से 350 स्टूडेंट्स अराउंड 360 स्टूडेंट्स को जो है सेलेक्ट करके यहाँ पर ग्राउंड में लेकर आ गया। यहाँ पर उनकी ट्रू एबिलिटीज़ और ज़ाहिर होंगी, उनका इन्वॉल्वमेंट, उनका इमेजिनेशन और उनकी तस्वुरी दुनिया जो रहती है वो यहाँ पर अभी कुछ देर में बच्चे जो है डिस्प्ले करेंगे लंच के बाद में। तो इसके तहत जो है बच्चों के मोटर स्किल्स डेवलप होंगे, उनकी तवज्जो जो है इन डेप्थ होंगी, इंसाइटफुल होंगे वो लोग, और गौर फ़िक्र से जो है पढ़ाई की तरफ अपनी जो है कोशिशें जारी रखेंगे, ऐसी उम्मीद है हमारी। जी शफी सर, नेक्स्ट आपका स्टेप क्या है फ्यूचर प्लानिंग है बच्चों को आगे लेके चलने की? ये आर्ट एक ऐसा एक ज़रिया है जहाँ पे जो है बच्चों को जो है मोटिवेट किया जा सकता थ्रू साइंस और मैथ्स की तरफ भी, तो जिसमें बच्चों का इन्वॉल्वमेंट होता है। शायद आप लोग कभी गौर करे होंगे, बच्चे कोई तस्वीर वगैरह उतार रहे हैं पेपर पे, उनकी पूरी तवज्जो पेपर की तरफ, पेन की तरफ, और वो क्या सोचते हैं और क्या फील करते हैं उस पर करने की। इसी तरीके से पढ़ाई, चाहे वो मैथ्स साइंस हो या और कोई दूसरे लैंग्वेजेस हो, उसके अंदर भी उसी तरीके का इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि बच्चों का इंटरेस्ट किसी का मैथ्स पे रहता है, किसी का साइंस। आर्ट के ज़रिए हम बच्चों को क्या है मालूम, एकेडमिक्स की तरफ, उनकी एक्सेलेंस को भी जो है, एकेडमिक एक्सेलेंस की तरफ भी जो है उनको मोटिवेट कर सकते हैं, उनको जो है और बेटर परफॉर्मेंस हम बना सकते हैं। और फ्यूचर प्लान ये है कि जो है इस तरीके का मोटिवेशन हर बच्चे को जो है मिलता रहे स्कूल्स की जानिब से। और हम जो है आर्ट गैलरी, द चिल्ड्रंस फाइन आर्ट गैलरी के ज़रिए हर स्कूल में जो है इसको एक करिकुलम बेस्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये स्कूल्स में रीच होगा और ये जो है हर हफ्ते में एटलीस्ट 2 क्लासेस इसके कंडक्ट करेंगे। इसमें से जो बच्चे इसके अंदर निखर के आते हैं, ये लोगों को जो है गैलरी में इनके पिक्चर्स डिस्प्ले होंगे। एमिनेंट आर्टिस्ट जैसे साबिका MF हुसैन और भी कई आर्टिस्ट हैं जो गैलरी के अंदर उनका आना जाना रहता है, और ये बच्चों को जो है सपोर्ट करेंगे, गाइड करेंगे उनके जो है आर्टिस्टिक स्किल्स को डेवलप करने। ये हमारा जो है इंटेंशन है और ये मिशन है हमारा। यहाँ सर, जो क्लासेस होंगे वो क्लासेस के जो टीचर्स बाहर से प्रोवाइड करेंगे आप लोग, या कुछ आपके टीचर अपॉइंट करेंगे? सर देखिए, एक्चुअली देखेंगे तो आपके अंदर और मेरे अंदर भी कुछ एक आर्टिस्ट छुपा हुआ है, लेकिन उसको उभारने के लिए क्या है, एक टीचर की ज़रूरत होती है, और टीचर्स के अंदर भी खुद एक आर्ट होता है। तो हम हमारे स्कूल्स के टीचर्स को जो है मोटिवेट करेंगे। एक सेपरेट आर्ट टीचर शायद हमको फ़ौरन मिलना मुश्किल होगा, लेकिन आर्ट गैलरी के जो हजरात हैं, मेंबर्स हैं, वो हमारे टीचर्स को गाइड करेंगे। ये जो है खुदादाद सलाहियत को उभारने वाला एक ऐसा इनिशिएटिव है, इसको जो है सिखाने की जो है कम ज़रूरत पड़ती है, उसको ग्रूम किया जा सकता है, उसको बेटर बनाया जा सकता है, ऐसा हमारा मानना है। तो टीचर्स को जो है ट्रेनिंग किया जाएगा थ्रू आर्टिस्ट के ज़रिए। आर्टिस्ट जो है हर महीने में एक आर्टिस्ट एक स्कूल को आएंगे, वहाँ के टीचर से मिलेंगे, उनको गाइड करेंगे और बच्चों को जो है उनको डिटेक्ट करेंगे, बच्चों के अंदर क्या सलाहियतें हैं, किस तरीके की उन लोगों की एबिलिटीज़ है, उसको देखकर जो है उन लोगों को एक बड़े प्लेटफॉर्म पे और जो है उनके जो वर्क है, आर्ट वर्क है, उसको जो है इंशाल्लाह हम एलाइट स्कूल्स और इंटरनेशनल स्कूल से भी जो है कॉम्पिटिट कराने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं कि जो है ओल्ड सिटी में या कम फीस दे के पे करने वाले बच्चों के अंदर सलाहियत नहीं होती, बोलकर उनके अंदर बहुत सी सलाहियत होती है और उनके अंदर बहुत सी जो है ऐसा पोटेंशियल छुपा है, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलते हैं, माँ बाप का सपोर्ट नहीं मिलता है, और टीचर्स की जो है मोटिवेशन की उनको काफ़ी ज़रूरत रहती है, जिसकी बिना पे जो है बेहतर एक आर्टिस्ट के ज़रिए जो है फ्यूचर में जो है ग्रूम हो सकते हैं वो लोग। ऐसा है।
टीचर्स फ़ौरन आर्ट टीचर्स मिलना मुश्किल है। इंशाल्लाह देखेंगे हमारे ही टीचर्स में से ग्रुप्स में से जो ऐसा स्किल रखने वाले टीचर है तो हम उनको आर्ट टीचर बनाएंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे और उनको जो है इस तरीके के एक्सपोजर्स देंगे जो बच्चों को गाइड करने में हेल्पफुल रहेंगे। सर ये पुराने शहर में काफ़ी स्कूल से, हज़ारों के स्कूल से, उसके बावजूद भी जो है सिर्फ आपके पास 20 स्कूल के लोग पार्टिसिपेट करें जी, तो उन लोगों के ताल्लुक से क्या कहना है आपका? सर देखिए, हर काम को करने के लिए फाइनेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी जैसा हम ये जो काउंट कर रहे हैं, हम हमारे शहर से एकदम आउटस्कर्ट्स में आकर ग्राउंड, हमारे एरियाज़ में ग्राउंड्स की फैसिलिटी नहीं है, ओपन स्पेस नहीं है जहाँ पे बच्चों को एक खुली हवा में नेचर के करीब यानी कुदरत के नज़ारों और मंज़रों के करीब में जो है बच्चों को लेकर आके उनको जो है एक्सप्लोर करने का मौका हमको नहीं मिलता है। तो ये जो है हमारे स्कूल से करीब 12 से 15 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसका ट्रांसपोर्टेशन हमको लगा है। और एक साथ में हम अगर ज़्यादा स्कूल्स को अगर टाई अप कर लेते हैं तो ये मैनेज करना हमारे लिए थोड़ा सा शायद दुश्वारी हो सकती थी। इसलिए हम ये इसको जो है पायलट प्रोजेक्ट की तरह स्टार्ट किए हैं, जिसमें 20 हैं और इंशाल्लाह और मज़ीद जो है स्कूल्स ऐड होंगे तो हम ऐसे, अब जैसा आप देख रहे हैं बाजू में और एक ग्राउंड है, हम दोनों ग्राउंड्स को बुक करा के लेकर आके यहाँ पे करा सकते हैं बच्चों को। और ट्रांसपोर्टेशन हमको लग रहा है ये सारी कॉस्ट बेरिंग है। बच्चों को इनकरेज करने के लिए उनको जो है अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट, एक्सेलेंस सर्टिफिकेट, मेडल्स, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल्स, ये सारी चीज़ें उनको दी जा रही है। और जो हजरात स्कूल लीडर्स है, जिसका मैं ये इस मीडियम के ज़रिए जो है मीडिया के ज़रिए शुक्रगुज़ार रहूँगा कि जिन्होंने जो है हमारी इंटेंशन को समझा, हमारे ख़यालात को समझकर ये 20 स्कूल्स अभी फ़िलवक्त ज्वाइन हुए हैं। ये हमारे फेडरेशन मेंबर्स के स्कूल्स हैं। हम दावत दूसरे फेडरेशंस को भी दिए हैं, उसमें से भी चंद स्कूल्स आए हैं। वो लोग भी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि भाई एक्चुअली हम काम क्या कर रहे हैं। जैसे सक्सेस होता है इंशाल्लाह वो लोग भी खुद सेल्फ मोटिवेट होंगे और उनके स्कूल के बच्चों को भी इसके अंदर एनरोल करेंगे। ऐसी हमारी। आपको क्या लगता है सर, ये सक्सेस हुआ आपका आज का प्रोजेक्ट? डेफिनेटली सर, आज के जो चीफ गेस्ट रहे हैं हमारी इस इंटेंशन को जानकर जो आर्ट कॉन्सेप्ट में हमने किया, उन्होंने यहाँ पर जो है शिरकत की, यही एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि अगर हमारा प्रोग्राम अगर ऐसा क्वालिटी बेस या कॉन्शियस बेस नहीं होता तो शायद ये लोग नहीं आ पाते यहाँ पर। तो ये डेफिनेटली सक्सेस होगा। अब देख रहे हैं यहाँ पर, और कुछ पेरेंट्स के फ़ोन मुझे अभी भी आ रहे हैं कि सर हमारी बच्ची को सेलेक्ट नहीं किया गया। तो हर बच्चे के अंदर सलाहियत है, तो हम इसमें से जो बेस्ट है, जिसका बेहतर एक नज़रिया है आर्ट को लेकर, उनको सेलेक्ट करें हैं। फ्यूचर में इंशाल्लाह उम्मीद रहेंगी कि जो बच्चे जो सिलेक्ट नहीं हुए हैं उनको भी हम ग्रूम करेंगे और उनको भी जो है ऐसे प्लेटफॉर्म पे लेकर आने की कोशिश करेंगे। और इंशाल्लाह आप मीडिया लोगों का जो है कवरेज रहेगा तो जो है ये बात और भी मज़ीद स्कूल्स को और फेडरेशंस को और अपने दूसरे ओल्ड सिटी के अलग मंडल स्कूल्स को जो है, ये फ़िलवक्त हम बंडलागुड़ा और चारमीनार मंडल के स्कूल्स को ही हम कवर करें हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट बहादुरपुरा और सैदाबाद और दूसरे मंडल्स में भी जो है इसको एक्सप्लोर करने की हमारी कोशिश रहेगी। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अब हटो बेटा। नाज़रीन, मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है आतिका मैडम, जो है आर्ट गैलरी की जानिब से ये कंपटीशन रखा गया है। उनसे और मज़ीद मालूम करने की कोशिश करते हैं कि जो है ये कंपटीशन ग्राउंड पर कराने की वजह क्या है और इसमें प्राइजेस का क्या है, इसके ताल्लुक से कुछ बताइए। आई एम फ्रॉम चिल्ड्रंस फाइन आर्ट गैलरी से है। हमारी पेरेंट गैलरी है दायरा सेंटर फॉर आर्ट्स एंड कल्चर। हम 2001 से एक्टिव हैं और 2010 में चिल्ड्रंस गैलरी स्टार्ट किए थे। द होल आइडिया इज़ क्योंकि बच्चों को आर्ट एजुकेशन इंडिया में बिल्कुल मतलब ज़िल्च था, तो हम लोग सोचे जो मतलब यूएस यूरोप में वगैरह ये सब बच्चों को जो मतलब इट्स अ कॉमन थिंग वहाँ पर लेके जाते हैं म्यूज़ियम्स में, और बच्चे आर्ट इज़ अ कैटलिस्ट देयर। आर्ट के वजह से हम लोग ये सोच रहे हैं कि दूसरे सब्जेक्ट्स में भी बच्चों को इंटरेस्ट आ जाए। स्पेशली हम बजट स्कूल्स के साथ एक कोलैबोरेशन है, बहुत सालों से करते हुए आए हैं। टीच फॉर इंडिया वाले हमारा सिलेबस भी अडॉप्ट किए हैं। इट्स बीन अ वाइल नो, 5-6 साल से करे हैं। तो उसकी वजह यह है कि यहाँ पर मतलब उनके क्लासरूम्स वगैरह लॉजिस्टिकली वहाँ पर मतलब द इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ नॉट सो गुड।
तो हमारा आइडिया था कि कम से कम मतलब हम क्या दे सकते हैं उन लोग को, जो हम लोग मतलब बेहतर स्कूल में पढ़ के आए थे, हम वो इम्पार्ट करना चाह रहे थे हमारे मतलब ये बच्चों को। तो ऑनलाइन भी कोर्सेज हम लोग करे हैं। तो ये टीच फॉर इंडिया जो बजट स्कूल्स और गवर्नमेंट स्कूल चलाते हैं, उनको सिलेबस दे दिए थे, तो ऑनलाइन में ही सब कुछ हो रहा था। हम लोग मैक्सिमम लोगों को रीच होना चाह रहे हैं। तो अभी मजलिस कितने कॉम्पिटिशन्स आपने कराए हैं? वो तो बेहिसाब है अभी, मतलब वो कितने स्कूल्स के जो है मे बी शायद 300 एंड मोर स्कूल्स हो गए अभी तक। हम लोग जो साथ साथ काम कर रहे हैं। एक एनुअल फेस्टिवल भी होता हमारा हर साल। अभी रिसेंटली हुआ अगस्त में, तेलंगाना माइनॉरिटी स्कूल्स वाले, तो हम लोग वो वेन्यू था हमारा, वेन्यू पार्टनर्स थे उन लोग, वो इनवाइट करे थे हमको कि उनकी न्यू बिल्डिंग थी तो वहाँ पर करना, मतलब हमारे बच्चों के लिए भी अच्छा रहेगा। तो वी हैड इनवाइटेड, तो मोर देन वो 6000 बच्चे ऐसे आते हैं फ्रॉम वेरियस स्कूल्स। 3 दिन का इवेंट होता है। फिर मजलिस प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन भी रिक्वेस्ट किए कि ओल्ड सिटी स्कूल्स मीन्स खासतौर चार मीनार के जो लोग जो फेडरेशन बनाए हैं, तो उसके लिए मतलब इनसे कोलैबोरेशंस करके तो एक न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हम लोग। बर्थडे बैशेस है। हम लोग आर्टिस्ट का काम लेते हुए, मतलब जो लेजेंडरी आर्टिस्ट है आज जो हम लोग लिए है, अमेरिकन पेंटर है जॉर्जियो क्लीफ। तो ये एक लेडी पेंटर थी, 1968 में गुजर गए उन्होंने, 98 ईयर्स। मतलब आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा आया कि बच्चों के लिए जो है ये कॉन्सेप्ट रखे? या एक्चुअली क्या है, ये बाय डिफ़ॉल्ट मतलब आई एम इनटू दिस फील्ड। आई वाज अ बिजनेस जर्नलिस्ट और मेरे सिस्टर जो है आर्ट राइटर थे, तो शी वाज इनटू फीचर जर्नलिज्म। हम लोग जब गैलरी स्टार्ट किए थे तो हम लोग महसूस करें कि आर्ट मार्केट इंडिया में ज़ीरो है। तो देन आई थॉट कि मतलब नहीं, इसको मतलब आगे करना है। सिर्फ छोटे छोटे सेमिनार है उससे नहीं चलेगा, हम पब्लिक में आना चाहिए, तो आर्ट वैसे बढ़ेगा और तब आर्ट को खरीदेंगे भी लोग, आर्ट की जानकारी रहेगी हर एस्पेक्ट में। आर्ट हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट, व्हाट दे डू इन यूरोप और मतलब यूएस वगैरह में। तो हम लोग भी मतलब वी वांटेड टू डू ऑन दोज लाइंस। तो हम अभी तक तो मतलब स्ट्रगल तो कर रहे हैं, स्ट्रगल में भी बहुत मज़ा आता। तो होपफुली हम अब ओल्ड सिटी स्कूल्स के लिए भी चार मीनार स्पेशली थ्रू दिस फेडरेशन वी विल डू। और यहाँ पर जो आज का जो कंपटीशन है जी, इसमें 3 ग्रुप्स है, प्राइमरी मिडिल एंड हाई। तीन मेडल्स दिए जाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड इन ऑल द ग्रुप्स, +2 कंसोलेशन प्राइजेस। और बाकी सारे बच्चों के लिए उन लोग को सबको गोल्ड मेडल रहेगा, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट रहेगा। और मेन थिंग उन लोगों को ओपन एरिया में लेकर आया सो दैट वो नेचर के साथ काम करें। और ये जो आर्टिस्ट है जॉर्जियो क्लीफ, वो भी नेचर में ही काम किए थे। दैट्स द होल आइडिया। अच्छे ब्यूटीफुल मेमोरीज उन लोग लेके जाएंगे यहाँ से। इंशाल्लाह वी विल बी डूइंग मोर आर्टिस्ट एंड मोर वर्क्स विद देम। आप ये क्या मैसेज देना चाहिए? अभी तो करेक्ट 20 स्कूल्स हो गए। मतलब देखिए, हार्ड सेलिंग नहीं, मतलब इट इज़ नॉट दैट। आई वांट टू लाइक सब लोग मिलके काम करेंगे। एंड जो ओल्ड सिटी जो पहले जो था, मतलब हम सुनते आए हैं कि ओल्ड सिटी वाज द मेन पॉइंट, फोकल पॉइंट इन हैदराबाद, जो मतलब वहाँ पर डेवलपमेंट था। वापस से उन लोग के पास भी एजुकेशन, आर्ट, कोई चीज़ में वहाँ भी कमी नहीं होनी चाहिए। जगह की तंगी क्यों ना हो, लेकिन इमेजिनेशन, जैसे कि हमारे सिस्टर बोले थे, इमेजिनेशन बड़ा होना चाहिए। वी विल वर्क ऑन दैट। ओके, थैंक यू वेरी मच। ये थे जो है अतीका मैडम, जो है काफ़ी अच्छे जो मालूमात दे रहे थे माशाल्लाह हमको। और उनके एकेडमी को जो है हम जो सलाम करते हैं और ऐसे कंपटीशन रखते जाएं और बच्चों को हौसला अफजाई करते जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। Enjoy today's work? How was the topic? Did you like the cheating part? Yeah. So we'll continue doing that, okay, in open rounds. So I begin with the primary section. We start with the consolation prize. There are 2 consolation prizes. The first consolation goes to Nawazuddin Biaban, son of Mr. Ziauddin Biaban. Help me. ये भी पकड़ लो, इधर
Prize goes to Mohammad Saud, Mohammad Arshad Pasha's son. Like doctors, when they take out the ECG is nothing. Yes. To all the dignitaries on the dais, I want. So we begin the middle school now. Next, company teacher or a madam can collect this appreciation certificate. If the sir is not there, a company teacher can come and collect Sayyida Kanis Fatima to Bluebird Grammar School. Mujahid sir. Sir is not there, a company teacher can come and collect. This became a grand success. This event became grand success. We are thankful to Atika madam and our team. Is a great event to improve the imaginative skills and thinking skills of the children, which is directly proportional to their cognitive development. So this cognitive development, which is most neglected in these days in terms of imagination, critical thinking and logical thinking, these art forms will help to develop all those things. So this imagination power or the thinking power of the children should be there in the regular school curriculum, so that the child's pent up emotions, whatever are there, could be released from this art form.